So now we will discuss about the mole concepts, okay, mole concept and molar mass. Okay, so generally we know that any quantity, okay, any quantity of a matter that can be represented. Okay, so हम लोग जब भी जाते हैं सपोज मार्केट में वगैरह तो क्या बोलते हैं, यस वन डजन. ओके, वन डजन मीन्स व्हाट? ओके, वन डजन मीन्स व्हाट? इट इज 12 पीसेस. बराबर है ना, 12 पीसेस. ओके, so what is that? We it is to denote the quantity of a substance. Okay, so quantitative parameters है ये वाले. Okay, one dozen. Then one gross. Okay, one gross हम लोग बोलते हैं. Okay, if 12 dozens, okay, 12 dozens है उसको बोलते हैं हम लोग, that is gross. Okay, gross बोलते हैं. So in the same way this term, okay, so in the same way this term that is called as mole. Okay, that is called as mole. So expressing a large count of object is made easy by using a quantitative adjective. Okay, like a dozen and gross. बराबर है. अभी हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंट करते हैं. डजन में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रॉस में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत और क्वांटिटी हो सकती है. ओके, अदर देन दिस. So even a small amount of any substance, okay, that contain a very large number of atom. Okay, so very large number of atoms, very large number of molecules, that can be represented with this term called as mole. Okay, so we use a quantitative adjective. Okay, this is what? A quantitative adjective. Okay, mole to express large number of sub microscopic entities. Okay, so I will write here to express. Okay, mole is taken to express. Okay, to express, to indicate. Okay, to express large number of large number of sub microscopic. Okay, sub microscopic in very small quantity. Sub microscopic, sub microscopic entities, quantities. Okay, entities like atoms. Okay, atoms है. Okay, molecules है, ions है. Okay, ions. Okay, then electrons, okay, electrons, etc., that are present in a substance, present in a substance. Okay, so what is the mole? क्या है मोल? जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, ओके, डजन से, क्रॉस से. ओके, दैट इज टू रिप्रेजेंट अ लार्ज क्वांटिटी. ओके, लार्ज क्वांटिटी. ओके, if we want to express a large quantity but which is of what? सब माइक्रोस्कोपी, बहुत ही छोटी छोटी एंटिटीज. छोटी छोटी एंटिटीज यानी कैसे? जैसे नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह है उनको काउंट, उनका जो काउंट है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दीज क्वांटिटीज, दीज एंटिटीज आर सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज. दीज एंटिटीज आर सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज. ओके, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज है, बिकॉज एटम्स, आयंस, electrons, particles. Okay, these are very small entities. So one mole is the amount of a substance that contain as many entities, okay, that are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. Okay, so once again this is also expressed, this mole is also expressed in terms of C12 isotope. Okay, C12 isotope. And what is that? The, let us calculate the number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotope. Okay, so we'll calculate. Okay, we'll calculate number of atoms. So I will write here to calculate number of atoms. We'll calculate कितने number of atoms होते हैं. Okay, number of atoms in 12 gram, in 12 gram, 12 gram of C12 isotope. Okay, C12 isotopes में.
ओके C12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ओके कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, दैट वी कैन कैलकुलेट. सो मास ऑफ वन कार्बन एटम, ओके मास ऑफ वन कार्बन एटम, वी यस्टरडे हम लोगों ने लिखा हुआ है. सो मास ऑफ वन कार्बन एटम, दैट इज वन C12 एटम, वन C12 एटम, ओके मास ऑफ वन C12 एटम. सो या फिर वर्ड्स में लिखता हूं मैं, मास ऑफ वन C12 एटम. कल देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्या है उसकी वैल्यू, मास ऑफ वन C12 एटम कितनी थी वैल्यू उसकी, 1.99 थी ना, 1.99, 1.996 क्या था, 2648, 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, बराबर है ना, -23 ग्राम्स, यही थी ना वैल्यू. दैट इज अ मास ऑफ वन C12 एटम, बराबर है ना. मास ऑफ वन C12 एटम इज 1.992648 into 23. Okay, this is the number, this is the quantity that is in terms of gram. Okay, this is the quantity that is in terms of gram. Now mass of 1 mole carbon atom, okay, the mass of 1 mole of carbon atom, so I will write here, okay, mass of 1 mole, okay, mass of 1 mole कार्बन एटम, मास ऑफ 1 मोल, दैट इज C12 एटम ही बोल सकते हो आप लोग उसको, ओके C12 एटम, या फिर कार्बन एटम भी बोल सकते हो, ओके कार्बन एटम, ओके इट इज 12 ग्राम, इट इज कितना है वो, 12 ग्राम है, ओके. सो मास ऑफ 1 मोल, ओके, so here 1 mole is now represented. So what you can understand now, this mole is also represent in terms of C12 एटम. okay, कार्बन का जो 12 है, कार्बन का जो 12 नंबर का जो आइसोटोप है, एटॉमिक मास उसका 12 है, उसके रिलेटिव ही हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, एटॉमिक मास, बराबर है ना, एटॉमिक मास हमने रिप्रेजेंट किया है. एटॉमिक मास कैसे रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने, दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ C12 एटम के रिलेटिव में हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है. सो इन दिस वे mass of 1 mole of C12 atom is 12 gram. So therefore the number of atoms in a 12 gram, okay, what we have to calculate, we have to calculate how many number of atoms which are present in a 12 gram of C12 isotope. So देखो हम लोग, so we will write down the number of atoms, okay, so we'll write down number of atoms, the number of atoms in 12 gram of C12, in 12 gram, 12 gram of C12 isotope, okay, C12 isotope, and that can be found, okay, वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, that can be found, okay, number of atoms निकालना है हमें. So yes, 12 grams, okay, 12 grams per 1 mole, okay, देखो मैं भी कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 12 grams, okay, 12 grams पर मोल, ओके, ये कहां से आया 12 ग्राम्स पर मोल, हमें पता है कि 1 मोल में 12 ग्राम्स है, बराबर है ना. 1 मोल एटम में उसका जो मास है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ओके. कार्बन के लिए, ओके, 1 मोल जो एटम है उसके, उसका जो ये जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो कितना है, 12 ग्राम. इसका मीनिंग क्या है, 12 ग्राम पर मोल, बराबर है ना, 12 ग्राम पर मोल, ओके, वी विल राइट हियर 12 ग्राम पर मोल, ओके. सो 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम. मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, दिस मच ग्राम्स पर 1 एटम. सो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1.992648 into 10⁻⁻23, ओके. तो ये देखो ग्राम, बराबर है, ये क्या है, ग्राम से, बट ग्राम से किसके लिए है, 1 एटम के लिए है, किसके लिए है, 1 एटम के लिए है. तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पर एटम. पर एटम का मीनिंग क्या है, एक एटम के लिए, बराबर है. सो वंस अगेन विल चेक हियर, फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन, its mass in terms of gram is this, okay, this much grams per atom, okay,
and 1 mole of atom, okay, 1 mole of this, okay, या फिर ये वर्ड ये मिटा देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो 1 mole of C12, 1 mole of C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो इससे क्या बोल सकते हो आप, 12 ग्राम अपॉन 1, दैट इज मोल, ओके, 12 ग्राम पर मोल, ओके, 12 ग्राम पर मोल इज दिस वैल्यू। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे और ये ग्राम यहाँ पे हो गया कैंसिल, ओके, ओके, और ये एटम गया ऊपर में डिवाइडेड बाय मोल, ओके, इसका यूनिट कैसे आएगा, इट इज एटम पर मोल, ओके, एटम्स पर मोल, यही आएगा ना इसका आंसर, ओके, एटम्स पर मोल। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस 12 डिवाइडेड बाय 1.992648, ओके, द आंसर दैट इज कमिंग इज 6.01367 into 10 raised to minus 23, सॉरी ये 23 माइनस में, ऊपर में 23 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23, ओके। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स पर मोल, ओके, सो एटम्स पर मोल। तो एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है किसमें, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो 6.0221367 into 10 raised to 23 number of atoms that are present per mole। एक मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, इतने एटम्स प्रेजेंट है, ओके, इतने एटम्स प्रेजेंट है। सो the in this way we have calculated, so 1 mole is the amount of substance, 1 mole is what, it is the amount of substance that contains these number of particles, okay। तो ये particles क्या हो सकते हैं, particles can be, okay, particles can be, so please mute कर लो वॉइस अपना। particles, particles can be atoms, पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटम्स बोल सकते हैं। देखो इस ये जो वर्ड है एटम्स, इसकी जगह पे देखो क्या क्या वर्ड आ सकता है, उसमें एटम्स, एटम आ सकता है, ओके, उसमें मॉलिक्यूल भी आ सकता है, उसमें क्या क्या आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, या फिर उसमें क्या आ सकता है, आयंस भी आ सकता है, ओके। व्हेनेवर वी आर रिफरिंग अ पार्टिकल, जब भी हम लोग पार्टिकल बोलते हैं ना इन केमिस्ट्री, उसका मीनिंग हो सकता है या तो वो एटम्स हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो वो आयंस हो सकते हैं, बराबर है, आयंस इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ओके, समझ में आया सब लोगों को। सो व्हेनेवर वी आर रेफरिंग पार्टिकल्स, ये वर्ड्स है जब भी हम लोग रेफर करते हैं, तो इट मींस आइदर इट मे बी एटम्स, आइदर इट मे बी मॉलिक्यूल्स, आइदर इट मे बी आयंस, ओके। सो इन दिस वे, for 1 mole, for 1 mole of any substance, for 1 mole of any substance, how many number of particles will be there, the number of particles will be 6.0221367 into 10 raised to 23 number of particles will be there for 1 mole for all the substance, okay। And this is what called as, किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, किसी को पता है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज, कल लॉ देखा था हम लोगों ने, यस, एवोगैड्रोस, ओके, एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ओके। एमिडियो, ओके, एमिडियो एवोगैड्रो वाज अ साइंटिस्ट, हमने देखा था, ओके, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, फिफ्थ लॉ देखा था, और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि देखो आगे जाके हम लोग ये जो एवोगैड्रोस कांस्टेंट है वो निकालने वाले हैं। सो दिस इज द एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ओके, दिस इज द एवोगैड्रोस कांस्टेंट, ओके, दिस इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। सो these मैं लिखता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट, yes, so this is the Avogadro's constant, so now I will erase this, okay, तो इसको erase करता हूँ, so this is called as the Avogadro's constant, so this value 6.0 क्या है, 221367 into 10 raised to, this is 23, 10 raised to 23 is known as Avogadro's constant, it is known as Avogadro's
एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय n सबस्क्रिप्ट a. In this way it is represented, okay, by this Avogadro's. The SI system, okay, of mole, okay, SI system of mole, SI system of mole को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ओके, मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मोल से, स्मॉल MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है. Okay, so 1 mole of oxygen atom, 1 mole of water molecule, 1 mole of sodium chloride, उसका मीनिंग क्या होता है, 1 mole is what, 1 mole of anything, okay, that is equals to this value, okay, this is equals to that value, okay. तो फिर से एक बार आप देख सकते हो व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, फिर से देखते हैं हम लोग एवोगैड्रो लॉ, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases at same temperature and pressure, it contain equal number of molecules. समझ में आया अभी आप लोगों को, एवोगैड्रोस लॉ हम लोगों ने देखा था, ओके, फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में एवोगैड्रोस लॉ देखा था, क्या बोला था उसमें, दैट इक्वल वॉल्यूम, ओके, अगर वॉल्यूम अगर इक्वल रहता है, ओके, वॉल्यूम अगर इक्वल रहता है, ओके, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इक्वल जो वॉल्यूम रहता है, इक्वल जो वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस के लिए, उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और वो कितने रहेंगे, वो इतने क्वांटिटी में रहेंगे पर मोल, ओके, एक मोल में, ओके. सो राइट नाउ इंस्टेड ऑफ दिस इक्वल वॉल्यूम, ओके, दे हैव रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फॉर 1 मोल, ओके. सो फॉर पर मोल इतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, एटम्स रह सकते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, इतने नंबर ऑफ आयंस रह सकते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट, ओके, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 mole of oxygen atom, okay, so I will write here 1 mole, okay, 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen atom, 1 mole of oxygen atom, 1 mole of oxygen atom will be equals to how many number of atoms, 1 mole of oxygen atom will be equals to how many number of atoms, so it will be equals to 6.0221367 multiply by 23 number of atoms, okay, यानी 1 मोल में कितने एटम्स रहेंगे ऑक्सीजन के, तो इतने रहेंगे, ओके. दूसरा एग्जांपल देते हैं, ओके, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे 1 मोल में, तो सेम, ओके, मैं अभी लिखता नहीं ये वाली वैल्यूज, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे. समझ में आया अभी आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल, ओके. सो 1 मोल, this quantity is calculated with reference to the C12 carbon atom, okay, and based on that क्या हमें मिला है, हमें मिला है एवोगैड्रोस कांस्टेंट मिला है. एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज व्हाट, this much number of particles, this much number of particles that will be present, okay, per mole of the substance, पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे. सो इट मे बी अ सोडियम क्लोराइड, वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड बोल सकते हैं, ओके, एंड सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द सोडियम क्लोराइड, ये आयन है, बराबर है, आयन से, ओके. So 1 mole of sodium chloride will have these number of formula units, okay, these number of formula units, formula units, formula units, formula units of NaCl. एक बार फिर से देखो, 1 mole of oxygen atom is equals to these number of atoms, 1 mole of water molecule, water molecule क्या होता है, H2O होता है, okay, 1 mole of water molecule H2O will be these number of water molecules, and 1 mole of sodium chloride, 1 mole of sodium chloride will be equals to the same quantity of formula units of NaCl. अभी देखो formula units क्यों बोला है, क्योंकि वो क्या है,
वो क्या है? यस, उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? ओके, फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? आयोनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल क्या है? H2O है, बराबर है, H2O मॉलिक्यूल है ये वाला। ओके, एटम नहीं है ये वाला क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, H2O, जिसमें हाइड्रोजन भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, एंड ऑक्सीजन हियर जस्ट इट इज अ ऑक्सीजन एटम। ओके, so in this way I hope that you have understood, okay, what is the meaning of mole. Okay, what is the meaning of mole? Okay, तो book में नहीं दिया है यहाँ पे, but I am going to tell you mole. Now we'll represent mole in terms of this small n से represent करेंगे। किससे represent करेंगे हम लोग? small n से represent करेंगे। So this will be very helpful while solving numerical. book में नहीं दिया है यहाँ पे। Okay, so we will introduce small n will be equals to number of moles. Small n will be equals to what? Number of moles. Okay, so now what is the molar mass? Now what is the molar mass? Okay, mole concept हो गया, समझ में आया आप लोगों को mole concept? What is that mole concept? These number of moles are these number of are in 1 mole of any atom. Okay, these number of particles will be present. Okay, that is calculated with the help of C12. Okay, now we have to understood what is molar mass. Okay, so the mass of 1 mole of substance. Okay, क्योंकि देखो उस मास में क्या वर्ड आया है? उस मास में मोल ये वाला वर्ड आया हुआ है, बराबर ना? दैट इज मोलार मास। ओके, मोलार मास। तो that will be calculated with reference to how many number of moles, कितने number of moles है? So we'll write here, so mass of 1 mole of substance, okay, in grams. Okay, so I will write here mass of 1 mole of substance, 1 mole of substance, 1 mole of substance, 1 mole of substance. ओके, और अभी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी क्या होता है आप लोगों को, सब लोगों को पता है, बराबर है ना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी क्या होता है? तो सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इट मे बी एलिमेंट, इट मे बी कंपाउंड। ओके, इट मे बी एलिमेंट, ये एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड भी हो सकता है। इट मे बी एलिमेंट और इट मे बी कंपाउंड। सो व्हेन इट इज कैलकुलेटेड इन ग्राम्स, ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड इन ग्राम्स। किस में कैलकुलेट करते हैं हम लोग? ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड मोलार मास, दैट इज कॉल्ड मोलार मास। ओके, that is called molar mass. समझ में आया सब लोगों को मोलार मास क्या है? तो with example you will understand very clearly. So mass of 1 mole of substance, mass of 1 mole of substance, 1 mole of substance is equals to 6.022 into 10 raised to 23, that is number of atoms. Okay, so mass of 1 mole of substance इज कैलकुलेटेड, किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं? ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, उसी को बोला जाता है मोलार मास, बराबर है? क्योंकि अभी जो मोल जो कंसेप्ट है उसमें हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला, बराबर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाला, तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, बराबर है? अभी हम लोगों ने लिखा। ओके, सो पार्टिकल्स निकाला, क्वांटिटी निकाला पार्टिकल्स की। ओके, तो अभी क्या करेंगे? पार्टिकल्स की क्वांटिटी निकाला, अभी हमें क्या चाहिए? मास चाहिए। अभी मास किस में निकालते हैं हम लोग? ग्राम्स, केजी, बराबर है ना? ग्राम्स में निकाल सकते हैं, केजी में निकाल सकते हैं। so that's why this molar mass is what? when 1 mole of any substance that is calculated, उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम लोग किस में निकालेंगे? ग्राम्स में निकालेंगे। that's why this is called as a molar mass. so for example, the molar mass of any element in grams is numerically equal to the atomic mass of that element. Okay, and so this is very important. Okay, ये बहुत ही highlight करके रखना पड़ेगा आप लोगों को, that molar mass of any element. Okay, so molar mass of any element. Okay, जो भी element है, molar mass of any element is in grams. Okay, that is in terms of grams. Okay, in terms of grams is numerically equal. Okay, is numerically equal, यानी उसकी जो वैल्यू है numerically, okay, numerically it is equal to numerically equal to atomic mass.
atomic mass. Okay, atomic mass of that element, atomic mass of that element. And what is that? That we will see. Okay, वो क्या है वो देखेंगे हम लोग, and then you will understand clearly about it. Okay, so consider करते हैं different elements है. Okay, elements को consider करते हैं और देखते हैं उनका एटॉमिक मास इन ग्राम्स क्या है और उनका एटॉमिक मास ओके इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास वो क्या है. ओके, सो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास देखते हैं पहले. ओके, एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यू में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम. ओके, मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम, मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम. चलो, तो अभी हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, सपोज हाइड्रोजन. ओके, अभी हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना है आप लोगों को पता है? कितना है एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए? कितना यूनिफाइड है? कितना यूनिफाइड है? 1 यूनिफाइड है, बराबर है ना? यस, 1.0 यूनिफाइड मास है. ओके, 1.0. ओके, 1.0, 1.0 राउंडेड ऑफ करके. ओके, फाइनल. सो 1.0 एटॉमिक मास. ओके, यूनिफाइड मास है. मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मोल. ओके, अभी देखो ग्राम्स पर मोल में निकालेंगे. ओके, ग्राम्स पर मोल में निकालेंगे मोलर मास. एंड इट इज 1.0 ग्राम पर मोल. 1.0 ग्राम पर मोल. ओके, ग्राम पर मोल. ओके, पर मोल, एक मोल के लिए. ओके, नाउ फॉर कार्बन. कार्बन के लिए देखो एटॉमिक मास कितना है उसका निकाला है हम लोगों ने. 12.0 यूनिफाइड मास है. ओके, 12.0 यूनिफाइड मास है. एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट इज सेम 12.0 ग्राम्स पर मोल. ओके, पर मोल जो वैल्यू है उसकी वो कितनी है? सेम है. लुक एट फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए कितना यूनिफाइड मास है? 16.0 यूनिफाइड मास. And it will be same 16.0 grams per mole. Okay, so क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने इसमें? that molar mass of any element, molar mass of an element in terms of grams is numerically equal to atomic mass of that element. Okay, तो किसी atoms के लिए okay for these atoms the U is equals to क्या देखा है हम लोगों ने? ग्राम पर मोल. यानी समझ में आ गया ना? तो U को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, बराबर, इंटरचेंज कर सकते हैं. ये देखो आप वैल्यूज देखो, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है दोनों की, बस यूनिफाइड की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है? मोलर मास ग्राम्स पर मोल आ रहा है. समझ में आ रहा है सब लोगों को? सो इंस्टेड ऑफ यूनिफाइड मास आप उसको व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ मोलर मास you can directly put values. Okay, sorry, you can directly write the unit grams per mole. समझ में आया? देख सकते हो आप वैल्यूज न्यूमेरिकली सेम है. वैल्यूज न्यूमेरिकली क्या है? सेम है. सो सिमिलरली द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस ओके दैट इज एग्जिस्टिंग एज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. चलो अभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं. ये किसके लिए है? सिंगल एटम्स के लिए, बराबर ना? आप देख सकते हो हाइड्रोजन सिंगल एटम, कार्बन सिंगल एटम, ऑक्सीजन सिंगल एटम है, बराबर है. अभी देखते हैं पॉलीएटम के लिए वैसे ही है क्या? अप्लाई हो रहा है क्या? ओके, ये वाला जो कंसेप्ट है चलो वो देखते हैं हम लोग फॉर पॉलीएटॉमिक. ओके, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए देखते हैं whether it is same or not. Okay, so we'll check for polyatomic molecule. So polyatomic substance जिसमें different atoms है. poly का मीनिंग क्या है? what is the meaning of poly? poly का मीनिंग होता है मेनी, बराबर है ना? polyatomic का मीनिंग क्या है? polyatomic. ओके, तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी. पॉली का मीनिंग क्या होता है? मेनी. सो मेनी एटम्स जिसमें है ओके ऐसा मॉलिक्यूल. सो पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस, सपोज पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस यहां पे लिखता हूं मैं, पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस इट इज. ओके, एंड नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास. ओके, जो हमने यूनिफाइड मास में ढूंढा हुआ है, बराबर है? हम लोगों ने यूनिफाइड मास में ही हम लोगों ने निकाला हुआ है. ओके, देन मोलर मास. ओके, देन मोलर मास, मोलर मास दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मोल. ओके, देखो यहाँ पे भी ग्राम्स पर मोल ही निकाला हुआ था, ग्राम्स पर मोल है. ओके, ये भी ग्राम्स पर मोल निकाल रहे. चलो अभी सब्सटेंस है
ऑक्सीजन, दैट इज O2 मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक है ना? यस, पॉलीएटॉमिक है। ओके, सो एक एटम्स नहीं है उसमें, ओके, मोर देन वन एटम है। ओके, एक एटम नहीं है उसमें, क्या है, एक से ज्यादा एटम है। लोग यहाँ पे देखो, ये सिंगल सिंगल एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट बोल सकते हैं इसके लिए हम लोग उसको। ओके, एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, एक एक ही एटम के लिए हम लोगों ने उसका एटॉमिक मास निकाला। राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीजन। ओके, व्हेन इट इज टू एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, टू एटम्स आर प्रेजेंट, बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा ऑक्सीजन का? यस, ऑक्सीजन का एक इसका 16 है, दो इसका कितना आता है? 32.0। ओके, 32.0 यूनिफाइड मास। सो इन टर्म्स ऑफ मोलर मास डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख सकते हो आप 32.0, बट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर मोल डायरेक्टली, ग्राम्स पर मोल। ओके, एक पर है, ओके, ग्राम्स पर मोल। देन फॉर मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, H2O, अभी देखो हाइड्रोजन के कितने हैं? दो एटम्स है, तो 2। ओके, और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। 16 प्लस 2 कितना हो जाना चाहिए? 18 होना चाहिए, बराबर है ना? कितना होना चाहिए? ओके, सो 18। हाइड्रोजन का ये देखो, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1 है, दो एटम का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये हो गया 2 टोटल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2, प्लस ऑक्सीजन का 1, सो 2 प्लस 1 दैट इज 18। सो 18.0 यूनिफाइड मास and 18.0 grams per mole, grams per mole. And similarly for the next compound, next polyatomic substance, that is sodium chloride, which is ionic compound. Okay, sodium chloride which is ionic compound, Na और chlorine. Okay, सोडियम के लिए देख सकते हो आप। ओके, Na के लिए देख सकते हो, सोडियम के लिए। ओके, सो Na का कितना है? 23 रहता है ना? ओके, 23 रहता है। एंड क्लोरीन का ओके 35.5। ओके, तो ये कितना हो गया? 58.5 यूनिफाइड मास। ओके, 58.5 यूनिफाइड मास, सो 58.5 ग्राम्स पर मोल। सो क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने दोनों चार्ट से? व्हाट वी हैव ऑब्जर्व विद दिस हेल्प ऑफ दिस टू चार्ट्स, दैट the value, it is numerically same. Okay, so molecular mass or its atomic mass will be same as that of molar mass. ओके, मोलार मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स पर मोल में, और यूनिफाइड दिस मास जो है मॉलिक्यूल का मास या फिर एटम का जो मास है वो किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फार्मूला मास है। ओके, यहाँ पे स्लैश फार्मूला मास क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? आयोनिक कंपाउंड, बराबर है ना? सोडियम क्लोराइड क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। ओके, ये भी पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, सो दैट इज द रीजन फॉर्मूला मास लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, तो न्यूमेरिकल में बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये कंसेप्ट। ओके, अभी शायद टाइम नहीं है, 40 हो गया, अभी न्यूमेरिकल हो नहीं पाएगा। ओके, और फास्ट में समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को ज़्यादा। सो विल सी दी न्यूमेरिकल्स टुमारो, हम लोग कल देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, चलेगा? न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे हम लोग उसको, दैट वी विल सी टुमारो। ओके, समझ में आया सब लोग? यस, रुक जाओ, मैं ले लेता हूँ प्रेजेंट ही।